میرا ٹائمز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ شمس قاسمی. آسام میں سیلاب نے زبردست تباہی مچا رکھی ہے. وہاں کی تصویروں کو دیکھنا ممکن نہیں ہو پا رہا ہے. ویڈیو دیکھ کر روح کانپ جا رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ آسام کا 40% علاقہ سمندر میں تبدیل ہو گیا ہے اور وہ خشکی کا علاقہ سمندر بن گیا ہے. ہر طرف پانی ہی پانی ہے. مکانات مکمل طور پر پانی میں ڈوب گئے ہیں. لوگوں کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے, سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے. جن کے پختہ مکانات ہیں ان کے بھی مکانات پانی میں بہہ گئے ہیں, اور جن کے کچے مکانات ہیں وہ علاقہ تو دریا میں ہی تبدیل ہو گیا ہے. اب تک کی رپورٹ کے مطابق آسام کا 40% علاقہ سیلاب سے متاثر ہے. کئی لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں. 70 سے زیادہ کی موت ہو چکی ہے. اور یہ جو پریشانی ہے سیلاب کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے. لگاتار آسام میں بارش بھی ہو رہی ہے اور ادھر سیلاب کا پانی جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اس دوران مولانا بدر الدین اجمل مسیحا بن کر سامنے آئے ہیں. لگاتار وہ ریلیف ورک کر رہے ہیں, امدادی سامان لوگوں کے بیچ میں جا کر تقسیم کر رہے ہیں, اور ہمیں سیلوٹ کرنا ہوگا مولانا بدر الدین اجمل کو. آسام کی روایت رہی ہے کہ وہاں ہر سال سیلاب آتا ہے. سیلاب کی وجہ سے لوگوں کے گھر ڈوب جاتے ہیں, لوگوں کا ڈاکومنٹس ڈوب جاتا ہے, لوگوں کے اسکول تباہ ہو جاتے ہیں, اور پھر دوبارہ سے ان کو اپنا گھر بنانا پڑتا ہے, ان کو اپنا اسکول بنانا پڑتا ہے, اپنی مسجدیں وہ بناتے ہیں, مندر بناتے ہیں. پھر سیلاب آتا ہے اور سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے. لیکن اب تک سیلاب سے آسام کا جو مسلم میجورٹی علاقہ ہے وہ زیادہ متاثر ہوتا تھا. ان علاقوں میں سیلاب سے زیادہ تباہی مچتی تھی. لیکن اس مرتبہ جو اپر آسام کا علاقہ ہے جہاں مسلمانوں کی آبادی صرف 5% ہے وہ زیادہ متاثر ہے. وہاں سیلاب نے زیادہ تباہی مچائی ہے, اور اسی وجہ سے اس وقت پورے دیش میں آسام میں آئے ہوئے سیلاب پر بحث ہو رہی ہے. آسام کا 3 علاقہ ہے. ایک اپر آسام کہلاتا ہے جس میں ڈبرو گڑھ ہے, جورہاٹ ہے. آسام کا دوسرا علاقہ ہے جو لور آسام کہلاتا ہے جس میں دھبری آتا ہے, بارپیٹا آتا ہے, گوالپارا آتا ہے. اور آسام کا تیسرا علاقہ جس میں گوہاٹی ہے, کریم گنج ہے جو بنگلہ دیش کی سرحدوں سے ملا ہوا ہے. یہ 3 آسام کے اہم ترین علاقے ہیں. اپر آسام میں مسلمانوں کی آبادی صرف 5% ہے, لوور آسام میں مسلمانوں کی آبادی 70% ہے, اور مڈل آسام میں بھی مسلمانوں کی آبادی 50-60% موجود ہے. اب آسام میں جب پہلے سیلاب آتا تھا تو میڈیا میں کوریج نہیں, کہیں کوئی چرچا نہیں. اس مرتبہ آسام میں آئے ہوئے سیلاب کی چرچا ہے, کیونکہ اپر آسام سب سے زیادہ سیلاب کی زد میں ہے. خاص طور پر جورہاٹ جہاں سے گورو گگوئی سانسد ہے کانگریس کے, وہاں سیلاب نے زبردست تباہی مچا رکھی ہے. اسی طرح چرائیڈو کا جو ایریا ہے اپر آسام کا, وہاں سیلاب نے زبردست تباہی مچا رکھی ہے. شیوا ساگر میں سیلاب نے زبردست تباہی مچائی ہے. ڈبرو گڑھ میں بہت بڑی تباہی مچی ہے سیلاب سے. اسی طرح لکھیم پور میں, دھیما جی میں, بسوانات میں, سوانت پور میں, نوگاؤں میں, موری گاؤں میں, ان سب علاقوں میں سیلاب نے تباہی مچائی ہے. کوکرا جھار اور بارپیٹا میں بھی سیلاب بہت زبردست ہے. اب آسام میں سیلاب کیوں آتا ہے اس کی وجہ بھی جان لیجئے. آسام میں 2 ندی ہے جو سب سے بڑی ہے, اور اس میں ایک ندی کو تقریباً پوری دنیا جانتی ہے, وہ ہے برہم پترا ندی. 2900 کلومیٹر لمبی ندی ہے, یعنی تقریباً 3000 کلومیٹر لمبی ندی ہے برہم پترا. چین سے یہ ندی شروع ہوتی ہے اور بنگلہ دیش تک کی ندی جاتی ہے. چین تبت ہوتے ہوئے ندی اروناچل پردیش میں آتی ہے, اس کے بعد آسام میں ندی آتی ہے, پھر آسام ہوتے ہوئے ندی یہ بنگلہ دیش میں جاتی ہے. اور یہ جو ندی ہے بہت بڑی ندی ہے. کئی مرتبہ دور سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ندی نہیں بلکہ سمندر ہے. دور دور تک پانی نظر آتا ہے. آسام کا کچھ علاقہ ایسا ہے جہاں روڈ کی کنیکٹیویٹی نہیں ہے اسی ندی کی وجہ سے, اور لوگوں کو وہاں ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ میں جانے کے لیے اسی ندی سے کشتی کے ذریعے, بوٹ کے ذریعے جانا پڑتا ہے. اگر وہاں پر برج بن جائے تو شاید ان کا راستہ جو 6-7 گھنٹے کا ہوتا ہے وہ آدھا گھنٹہ میں طے ہو جائے, لیکن ان کو بوٹ کے ذریعے جانا پڑتا ہے, کشتی کے ذریعے جانا پڑتا ہے. اور ہر سال انہی ندیوں کی وجہ سے وہاں تباہی مچتی ہے. اب تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ اس سال سیلاب کی وجہ سے 70 سے زیادہ کی موت ہو گئی ہے. 10 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے ہیں. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ کسی کا پختہ مکان ہے,
सैलाब का बहाव आता है, पानी का बहाव आया और पूरा पुख्ता मकान डूब गया। एक वीडियो को देखकर तो मेरी रूह कांप गई है। आप इस वीडियो को देखिए, पुख्ता मकानात बने हुए हैं और पहले से जो मकानात हैं, जो घर हैं, आधा पानी में डूबे हुए हैं। उसके बाद पानी की लहर आती है और सीधे इन मकानों को बहाकर लेकर चली जाती है। ऐसा लगता है कि इस पानी में करंट है या फिर ज़लज़ला है जिसने ज़ोर से झटका दिया इन मकानों को और पूरा मकान ही पानी की लहर की जद में आ गया। कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें देखा जा रहा है कि आसाम में जो लोगों के घर होते हैं वो टीन के होते हैं, कच्चे मकानात होते हैं ज़्यादातर, और कच्चे मकान की जो टीन का जो आखिरी सिरा है, बिल्कुल टॉप, वहाँ पर लोग बैठे हैं और वो भी पानी में डूबा हुआ है और शायद ज़रा सा कुछ हो तो उनका पूरा घर ज़मींदोज़ हो जाएगा, वो उसमें बह जाएंगे। कई जगह देखा गया कि लाशें पानी में बह रही है, लोग पानी में बह रहे हैं, जानवर पानी में बह रहे हैं, दूसरी चीज़ें पानी में बह रही है, उनके पास कोई जगह नहीं है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल को हमें सैल्यूट करना चाहिए जो इन इलाकों में पहुंचकर लगातार इमदादी सामान पहुंचा रहे हैं, रिलीफ वर्क तकसीम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 4 करोड़ से ज़्यादा का मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने सामान तकसीम किया है और लगातार उनकी तरफ से इमदादी सामान की तकसीम जारी है। और मौलाना बदरुद्दीन अजमल अपना पैसा लगाते हैं क्योंकि मौलाना बदरुद्दीन अजमल की कंपनी है अजमल परफ्यूम, अजमल एंड सन्स। दुनिया के 50 से 60 मुल्कों में मौलाना बदरुद्दीन अजमल का इत्र का कारोबार है और हिंदुस्तान के बड़े बिजनेसमैन और मालदार लोगों में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की फैमिली का शुमार होता है। दुबई और सऊदी अरब में तो बहुत बड़े पैमाने पर मौलाना का कारोबार है। किसी भी बड़े से बड़े मॉल में जाएंगे, बहुत महंगे शॉपिंग सेंटर में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको अजमल परफ्यूम का शोरूम या उनकी शॉप ज़रूर नज़र आएगी। तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल अपना ये पैसा लोगों की मदद के लिए लगा रहे हैं, उन तक इमदादी सामान पहुँचा रहे हैं। और यही वजह है कि आसाम के हिंदू हों या मुसलमान, वो हमेशा मौलाना बदरुद्दीन अजमल को अपना मसीहा मानते हैं। उनको वोट करे या ना करे, लेकिन हर कोई उनकी तारीफ़ करता है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल ही उनके काम आते हैं। आसाम का ये जो धुबरी का इलाका है वहाँ तो हर साल सैलाब आता है और जब उन इलाकों में सैलाब आता है, लोगों के घर डूब जाते हैं, उनके पास खाने पीने का कोई सामान नहीं रहता, तो सरकार वहाँ मदद नहीं पहुँचाती बल्कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल की ऑर्गेनाइजेशन, इनकी पार्टी के लोग, इनकी NGO ही वहाँ रिलीफ वर्क करती है। और मौलाना बदरुद्दीन अजमल के इन्हीं कामों की वजह से उनको वहाँ वोट मिलता है, उनको जीत मिलती है। ये अलग बात है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 10 लाख वोटों से वो अपना चुनाव हार गए, लेकिन उससे पहले 3 मरतबा वो MP बने। उनकी पार्टी को हमेशा 17-18 सीटों पर जीत मिलती रही, इस मरतबा सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली। तो वजह यही है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं, रिलीफ वर्क की वजह से, सोशल वर्क की वजह से, इंसानियत की वजह से, भाईचारा को निभाने की वजह से, क्योंकि वो सबों के लिए काम करते हैं और इस बात का एहसास वहाँ के लोगों को है। जिन इलाकों में सरकार ने कॉलेज नहीं बना रखा है, स्कूल नहीं बना रखा है, उन इलाकों में मौलाना बदरुद्दीन अजमल का स्कूल है, कॉलेज है। 70 से ज़्यादा कॉलेजेस मौलाना बदरुद्दीन अजमल के चलते हैं और वहाँ गरीब बच्चों को तालीम दी जाती है। अजमल सुपर 40 है मौलाना बदरुद्दीन अजमल का, जहाँ 10,000 से ज़्यादा बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं और हर साल तकरीबन 1,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नीट क्वालिफाई भी कर लेते हैं। और जिन इलाकों में डॉक्टर नहीं थे उन इलाकों में अब डॉक्टर हो गए हैं। जहाँ के लोगों ने झोला छाप डॉक्टर के अलावा किसी MBBS डॉक्टर को नहीं देखा था, उनकी क्लिनिक नहीं थी, उनके क्लिनिक अब वहाँ खुल गए हैं। और ये सब मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने आसाम में किया है। जो आसाम की ताज़ा तरीन सूरत हाल है सैलाब की, वो सच में बहुत ही डरावनी है, भयानक है। और दुआ कीजिए कि आसाम के हालात बेहतर हो जाए, क्योंकि आसाम में सैलाब ने ज़बरदस्त तबाही मचा रखी है। आप वीडियोस देखिए कि किस तरह पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है, पानी में बह रहा है। एक और नदी है बाराक नदी, उस नदी में भी जो पानी की सतह है बहुत ऊपर जा चुकी है और पूरा इलाका डूब गया है। और छोटी छोटी 120 से ज़्यादा रिवर है, नदियां हैं जो इन नदियों से मिली हुई है और उसकी वजह से पूरा इलाका सैलाब की जद में आ गया है। आसाम में तकरीबन 25 अजला हैं, 25 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उनमें से 15-16 में सैलाब ने तबाही मचा रखी है और लोगों की जो परेशानी है बढ़ती जा रही है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने असम हुकूमत से मुतालबा किया है कि 10,000 करोड़ का पैकेज रिलीज़ किया जाए, अलॉट किया जाए, इतना बड़ा फंड आसाम के सैलाब ज़दा लोगों की मदद के लिए, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई मदद नहीं की है। जो रिपोर्ट है वही है कि हर साल आसाम में तकरीबन
9 लाख हेक्टर से ज़्यादा का जो रकबा है वो सैलाब से मुतासर होता है, लेकिन इस साल ये तादाद और ज़्यादा बढ़ गई है। इसी तरह हर साल आसाम में तकरीबन सैलाब की वजह से, फ्लड की वजह से 200 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान होता है। साल 2004 में असम में जो सैलाब आया था तो उसकी वजह से 771 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था। असम में एनआरसी का मसला बहुत बड़ा होता है, सिटीजनशिप का मसला बहुत बड़ा होता है, और असम के मुसलमानों को कहा जाता है आप अपनी सिटीजनशिप को साबित कीजिए, और मुसलमान मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंट्स कई मरतबा फराहम नहीं कर पाते। क्यों? इसी वजह से हर साल लोअर आसाम में यानी बारपेटा में, डुबरी में, करीमगंज के इलाके में सैलाब आता है, लोगों का घर डूब जाता है। लोग अपनी ज़िंदगी बचाएंगे सैलाब की वजह से, अपने कागजात को बचाएंगे, डॉक्यूमेंट्स को बचाएंगे, लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को नहीं बचा पाते। कई मरतबा सैलाब की वजह से उनका इलाका बदल जाता है। इस साल ब्रह्मपुत्रा नदी एक दूसरे इलाके में फैल जाती है, और जो खुश्की का इलाका था जहाँ 2 साल पहले लोग घर बनाकर रह रहे थे, वो पूरा इलाका नदी कटाव की जद में आ जाता है और वो ब्रह्मपुत्रा नदी का पार्ट बन जाता है। वहाँ पर लोग घर बनाकर नहीं रह सकते। अब उन्हें 10 किलोमीटर दूर जाकर कहीं और अपना घर बनाना पड़ता है। वो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ रहते हैं। फिर 10 साल बाद वो इलाका ब्रह्मपुत्रा नदी का पार्ट बन जाता है, और 25 साल बाद वो किसी और इलाके में जाकर रहने पर मजबूर हो जाते हैं। ये आसाम के बहुत सारे लोगों की कहानी है। और जिन लोगों को वहाँ सिटीजनशिप से महरूम किया जा रहा है, जिनका नाम एनआरसी में नहीं आ रहा है, एसआईआर में जिनका नाम काटा जा रहा है, जिन लोगों को असम फॉरेनर ट्रिब्यूनल से गैर मुल्की बताया जा रहा है, या गुवाहाटी हाई कोर्ट से जिनको बांग्लादेशी साबित किया जा रहा है, उन सब लोगों की यही दास्तान है कि ब्रह्मपुत्रा नदी की वजह से उनका लोकेशन बदल गया। अब अदालत कहती है कि 10 साल पहले आप यहाँ थे, उसके बाद आप वहाँ, तो आप अलग अलग जगह बदलते रहे, तो इससे प्रूफ होता है कि आप आसाम के शहरी नहीं हैं और वहाँ के मुसलमानों के दर्द को नहीं समझा जा रहा था। लेकिन इस मर्तबा अपर आसाम में जो सैलाब आया है और ब्रह्मपुत्रा नदी ने आसाम के ऊपरी इलाकों में जो तबाही मचाई है, वहाँ के लोगों के जो घर डूब गए हैं, उनका जो इलाका खुश्की का था, जहाँ के बारे में लोगों ने नहीं सोचा था कि वहाँ सैलाब आएगा, इस साल उन इलाकों में सैलाब आ गया है। और शायद अब वहाँ की हुकूमत को, अदालत को, फॉरेनर ट्रिब्यूनल को ये बात समझ में आए कि ब्रह्मपुत्रा की वजह से, इस ख़तरनाक नदी की वजह से लोगों का जोग्राफिया बदल जाता है, लोगों की लोकेशन चेंज हो जाती है, इधर से उधर उनको जाना पड़ता है। क्योंकि अपर आसाम वालों को इस साल यानी साल 2026 में इसी मुसीबत का, क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, जिस क्राइसिस का सामना पिछले 100 साल से, बल्कि जब से ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, लोअर आसाम के लोग फेस कर रहे थे। ये अलग बात है कि मौजूदा हुकूमत ने इसको इशू बना दिया था, तो शायद अब इनको दर्द समझ में आए कि क्यों वहाँ के लोगों की लोकेशन बार बार बदलती रहती है, इसी ब्रह्मपुत्रा नदी की वजह से। क्योंकि जो नदी है अपना एरिया बदलती रहती है, कभी इस इलाका में, कभी उस इलाका में, कभी उस इलाका में। और इस बात को वही लोग समझ सकते हैं जो सैलाब ज़दा इलाकों में रहते हैं, जिनके यहाँ कोई नदी है, जिनके इलाकों में सैलाब आता है। दिल्ली में बैठे हुए लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, मुंबई, बेंगलोर या जो बड़े शहरों में लोग रहते हैं उनको बात समझ में नहीं आएगी। अगर आपको दर्द समझना है कि सैलाब का दर्द क्या होता है, कैसे लोगों के घर टूट जाते हैं, उनका इलाका बदल जाता है, तो आप बिहार के सीमांचल के लोगों से पूछिए कि उनके यहाँ सैलाब आता है और किस तरह उनका इलाका बदल जाता है। मैं बहुत सारे लोगों को पर्सनली जानता हूँ, अररिया में, किशनगंज में, कटिहार में। उनका घर पहले कहीं और था और 2 साल बाद उनका घर 25 किलोमीटर दूर कहीं और शिफ्ट हो गया, क्योंकि उनका वो जो इलाका था वो नदी कटाव में आ गया, वो दरिया का हिस्सा बन गया, उनकी ज़मीन चली गई। अब कहीं और जा कर के उन्होंने रिहाइश अख्तियार की है, ज़मीन ख़रीद करके, या किसी तरह असम का जो इलाका है वो सबसे ज़्यादा इसी का शिकार होता है, जिसको हम लोअर आसाम का इलाका बोलते हैं। बांग्लादेश में भी बहुत सारे लोगों की कहानी है। पिछले साल तो पंजाब में सैलाब ने जो तबाही मचाई थी कि किस तरह चिनाब नदी और जो दूसरी दरिया है, जहाँ के बारे में लोगों ने नहीं सोचा था कि इन दरियाओं में इतनी लहर आएगी, इतनी तुग़यानी आएगी, पूरा का पूरा इलाका डूब जाएगा। लेकिन पंजाब की नदियों ने जिस तरह तबाही मचाई थी, पंजाब का 10 ज़िला सैलाब के जद में आ गया, इतनी बड़ी तबाही आई थी और आज तक दोबारा वहाँ लोग आबाद नहीं हो सके, क्योंकि उनका पूरा इलाका डूब गया था। तो जो लोग दरियाओं के बीच में रहते हैं उनसे दर्द पूछे कि सैलाब किस तरह तबाही मचाता है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।